कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन डन। चलें, बेहतरीन। बस यार 10-12 दिन। कौन नहीं वापस आना चाहता? शुक्रिया जी। आई एम लुकिंग गुड, शुक्रिया। अच्छा जी, तो यार वापस तो खुद आना है मैंने, बट ऑब्वियसली यहाँ पे काम की वजह से थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। बट अगेन जैसे मैंने कमिट किया है कि मेहनत नहीं रुकेगी और वही एनर्जी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। शुक्रिया जी अब्दुल्ला। चलें जी, तो मुझे बताओ, मैंने ये एक प्यारा सा सवाल दिया था आपको, बल्कि दो दिए थे कल। तो पहले वाले में आप बताएं कि क्या लिखा आपने। प्लीज़ यहाँ पे रिप्रोड्यूस करें उसको जल्दी से, जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे आपने लिखा है सबसे पहले, द कंपनी फेल्ड टू होल्ड एजीएम ऑन द ड्यू डेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ enacted before the year end, which lead to a penalty. Although the law was enacted before the year end, it is important to note the condition of non-compliance existed at year end or not. In such conditions, non-compliance was expected by the year end. Adjusting event require adjustment. गलत। सनसन आपका नाम लिखा हुआ है सनसन, बट ये है कि गलत है। Subsequent to the year end, penalty of rupees imposed not holding AGM within 3 months at the close of the financial year. The imposition of penalty after the year is a non-adjusting event as the obligating event was not occurred before the year end. So the condition does not exist. However, the amount of penalty constitutes very good. सिद्दीक आपका रीड कर रहा हूँ. When the entity discloses the event appropriately, the auditor is satisfied. The auditor should express unmodified opinion. बिल्कुल सही लिखा है. Very good सिद्दीक. आबिदीन, the company failed to hold AGM by 31 March. As a result, the company is subject to penalty. The subsequent non-adjusting condition of penalty did not exist. The auditor will express unmodified opinion. Very good, Abidin. Isha, impact on auditor opinion regarding, as an auditor is required to report on other regulatory section that the audit report whether in his opinion company accounts have been drawn up in conformity in agreement with the books of accounts. नहीं, गलत 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 ईशा, गलत। उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, सेम है मास। मुसब, अ न्यू लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड रिक्वायरिंग कंपनीज टू होल्ड, सही है जी, कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर एंड द अकाउंट्स वर नॉट ऑथराइज. दिस लीगल ब्रीच इज रिक्वायर्ड टू पे अ पेनल्टी. कंपनी मस्ट रिकॉर्ड पेनल्टी. गलत, गलत लिखा है मुसब. कंपनी पेनल्टी क्यों रिकॉर्ड करेगी? पहले बताओ, ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल बनाया तुम लोगों के लिए. हाँ जी, कौन सा इवेंट है ये? एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग? सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ब्रीच हुआ है ईयर एंड के बाद. आपको ईयर एंड पे तो नहीं पता था ब्रीच करोगे? अच्छा भाई, जवेरिया लिखती हैं द ब्रीच ऑफ लॉ occurred on which resulted in imposition of penalty since the event and condition for penalty occurred after the reporting period will constitute a non-adjusting event. Very good. Since the amount of penalty is material, it shall be disclosed in the FS as material non-adjusting event. Very good, Javeria. If the company appropriately disclose this penalty in its FS, the audit opinions remain unmodified. There will be no impact on report and other regulatory matters. The auditor is not required to give opinion on such matters. Very good. पर आपने इसमें यह भी लिखना था कि अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो मैं क्या करूंगा. अंसा आपने लिखा है, since this is a subsequent non-adjusting event, condition of penalty was not present at the year end, it does not need penalty to be recorded. Therefore, unmodified opinion will be given. Further, its disclosure can be considered if amount is material. If नहीं, material है, मटीरियल है. सही है सर. मैनेजमेंट हिसाब तो लगा सकती है ना कि 3 महीने में नहीं. अच्छा मुझे बताओ, आप कह रहे हो मैं ईयर एंड पे प्रोविजन बुक करूं, क्या वो कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी? हाँ भाई सनसन, ये बताओ. और तुम्हारा नाम ही सनसन है या फिर ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई कार्टून कैरेक्टर का नाम है सनसन? हाँ जी. अच्छा, सनाउल्ला नाम है, माशाल्लाह. तो सनसन क्यों लिखा हुआ भाई? सनाउल्ला, ये सनसन क्यों लिखा हुआ फिर? मेरे को लगा वही जो बेब्लेड वगैरह के कार्टून के कैरेक्टर होते हैं ना, सनसन प्यार से बुलाते हैं. वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई, क्या बात है. मतलब इमेजिन करो तुम्हारी बेगम तुम्हें बुला रही है, सनसन इधर आओगे?
इमेजिन करो। तो मतलब कैसा लगेगा, मतलब घर में अम्मी वगैरह सब बैठे हुए हैं, तुम्हारी बेगम से सनसन, तो फिर कैसा लगेगा? सोचो, मतलब सही है, प्यार से बुलाते हैं, मैं उस बात की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सनसन, चलो खैर हो गई। बेगम बोले तो चलेगा, चलो ये भी सही है, बोल ले बेगम ही करा दो, कुछ भी बोल ले, जो बात है। वैसे वैसे ही बोल रहा हूँ, तुम्हारी एंगेजमेंट होगी तो तुम्हारी बेगम से पूछेगा कहाँ जा रही हो सनसन के साथ। मतलब सोचो, इमेजिन करो कि किस किस तरीके की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मेरे सनसन मुझे लेने आए, सनसन आपने खाना खा लिया, तो चलो खैर है, गुड। अबे नहीं कर चीज भाई, मजाक कर रहा हूँ जानी, सही है। अच्छा भाई, सिंस नॉन कंप्लायंस इज आफ्टर द ईयर एंड, ओके जी, तो भाई पहले बता दो कि ये बात आपको समझ आ रही है कि ये एक नॉन एडजस्टिंग मटेरियल इवेंट है, इसका डिस्क्लोजर बनता है। यस, अगर एडजस्टिंग होता तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती, बिकॉज इट इज मटेरियल। चलें, ओके, तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सिंस द ब्रीच अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड, कंडीशंस फॉर ब्रीच डज नॉट एग्जिस्ट एट ईयर एंड, क्योंकि आप ईयर एंड पे नहीं कह सकते कि मैं आज ऑब्लिगेटिंग इवेंट है मेरा, ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुआ ईयर एंड के बाद। चलें, इसके बाद, however the amount of penalty is considered to be material as it represents 9% of PBD। चेक कर लेना, मैंने रात को ये नींद में नशे में सवाल बनाया था, क्या ये 9% ऑफ PBD आता है? यस, ओके, मतलब सही किया था मैंने। Auditor should request the management to disclose non-compliance as it is material subsequent event। सही है जी, हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि भाईजान इसको डिस्क्लोज करें क्योंकि ये इवेंट सब्सिक्वेंट है, एग्रीड, नॉन एडजस्टिंग है, एग्रीड बट मटीरियल है, हमने कंक्लूड किया है। इफ मैनेजमेंट एग्रीज टू डिस्क्लोज नॉन कंप्लायंस, द ऑर्डर शुड गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन। However, if the management do not disclose non-compliance, the auditor should give a qualified except for opinion, and in basis for qualified opinion section explain the nature of misstatement। सही हो गया जी। अच्छा, अब एम्फेसिस ऑफ मैटर आप देखेंगे कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, मतलब ये सिर्फ देखना है आपने, सही है ना, यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल, इफ यू थिंक अबाउट इट, तो आप लिख सकते हैं कि ऑडिटर में कंसिडर गिविंग एम्फेसिस ऑफ मैटर। सही बात, अगेन आई डोंट थिंक सो कि यूजर्स की, देखो भाई मुझे बताओ कि यूजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है, बताओ क्या यूजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है? नहीं है ना, ऐसा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो रेलेवेंट नहीं है ना यार। इसलिए as the due date of non-compliance of regulation the AGM delayed, this will constitute a misstatement as the IFRS require the company to comply with law and regulations result of accounting policies। गलत गलत गलत, वेरी रॉन्ग ड्राफ्टिंग जानी, शेजिल मेरी जान गलत लिखा है। Therefore auditor shall express an unmodified opinion। सही है, गलत लिखा हुआ है। ओके, तो अगले सवाल पे आ जाएं। हाँ भाई, इसके प्रोसीजर्स जानी, इसके प्रोसीजर्स जानी, जल्दी बताओ। ओके, सिद्दीक लिखते हैं इंक्वायर मैनेजमेंट व्हाट इज द स्पेसिफाइड पीरियड विद इन विच द कस्टमर हैव द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। Obtain sales journal, select sample of sales transaction, inspect the agreements for the specified sales period, whether the period varies every customer। GRNs made against them and ensure that those transactions are not recorded। Okay. For selected sample of JDN, check correspondence with those customers to ensure goods are sold with the customer's recorded revenue। चलें, acceptable procedures, सही है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, ईशा आपने लिखा हुआ है इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन विच कस्टमर अवेल द ऑप्शन, वेरी गुड। फॉर सैंपल ऑफ रिकॉर्डेड सेल्स ऑन रिटर्न ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डेंट डिलीवरी नोट साइंड बाय द कस्टमर आफ्टर लैप्स ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, वेरी गुड। Obtain sample of credit notes and ensure revenue has not been recorded for returned goods, very good drafting, Isha।
अंसा आपने लिखा है select a sample of sales on written basis from the sales report whose time for return has not been expired. Get their contracts, vouch them to supporting documents, sales order, GL invoice, and determine transaction price. See if the management estimate of returns based on historical returns. That is really good procedure कि आपने historical returns देखने होते हैं कि history में कितने वापस आए. Evaluate the reasonableness of the assumptions of return. Check if the revenue and the contract liability has been correctly accounted for. Very good. Okay. The auditor shall check the past trend of the company that how many items are returned usually. चलो ये तो एक प्रोसीजर हो गया ना. हलीमा आपने लिखा है ऑडिटर shall obtain understanding of management process, obtain and assess sales journal to ensure sales are recorded up to the expected amount of goods that the customer usually do not return. Very good. Ensure related contract liability and right of return assets recorded for expected return of goods. Very good. बिल्कुल सही लिखा है. Shazil, obtain a contract from related to goods sold on return basis to inspect terms and conditions. बहुत अच्छा लिखा है पहला. Auditor should ensure the revenue is recognized only when the performance obligation is settled when the customer decided to keep the goods. Very good. दूसरा भी बहुत अच्छा लिखा है. Shazil, in case of goods returned from the customer, inspect written document, trace them to related credit entries. Very good. The auditor should also inspect cash receipt from the customer bank to ensure performance obligation is settled. नहीं ये नहीं करोगे, कैश वाला प्रोसीजर गलत लिखा है तुमने. Verify the sales return balances allowance to ensure it is properly estimated and accounted for. Compare sales return rate of previous period with the current period to ensure reasonableness. Very good आमना, बिल्कुल सही लिखा है ये. ओके अच्छा मुझे बताओ, इस सवाल की थीम ये है मेरे बच्चों, इस सवाल की थीम ये है कि हम जो गुड्स सेल करते हैं, सही है जी, वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है. ऐसा ही है. IFRS 15 आपको ये कहता है कि अगर आपने 100 यूनिट्स सेल किए हैं अज्यूमिंग, और आपको ये लगता है कि इसमें से 5% गुड्स रिटर्न आएंगे, दैट मीन्स कि 5 यूनिट्स हो गए, तो आप इन 5 यूनिट्स की सेल ना बुक करें. ऐसा ही है भाई, जल्दी बताओ. ये दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 15. ऐसा ही है. अच्छा अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपको ये इंश्योर करना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपको ये इंश्योर करना है कि सेल्स रिकॉर्ड हो जाए व्हेन, या तो क्या हो जाए, टाइम लैप्स हो जाए, और कस्टमर एक्नॉलेजमेंट आ जाए. इस बात को मानते हो? या तो टाइम लैप्स हो जाए या तो कस्टमर एक्नॉलेजमेंट आ जाए. ऐसा है भाई, जल्दी बताओ, ऐसा है? जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, वो यही है ना कि यही होना चाहिए. अच्छा पर ये तो वो हो गया जो सेल्स रिकॉर्ड हो गई, टाइम लैप्स हो गया, सही जी. इसके अलावा आप ये भी तो देख सकते हैं ना कि हिस्टोरिकल पैटर्न क्या रहा है. हिस्टोरिकल पैटर्न के सेल्स वर्सेस एक्चुअल रिटर्न्स. तो क्या मैं पिछले सालों में जो सेल किए और जितने रिटर्न आए उसका एक परसेंटेज देख सकता हूं, 2022 का, 2023 का? क्या परसेंटेजेस देख सकता हूं? जल्दी बताओ कि एक्चुअल में कितने रिटर्न्स आए हिस्टोरिकली. तो क्या आपको उस परसेंटेज रिटर्न की रीजनेबलनेस मिल जाएगी बाय इवैल्यूएटिंग द पास्ट ट्रेंड्स, हिस्ट्री. और फिर यही परसेंटेज आप किस पे अप्लाई करें? करंट ईयर की सेल्स पे. क्या कहते हो? यही परसेंटेज आप करंट ईयर की सेल्स पे अप्लाई करोगे ना, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न की अमाउंट मिल जाएगी, जिससे आपने क्या बुक करनी होती है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. बात याद आती है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. ऐसा है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों. ओके फिर आप ये भी तो कर सकते हैं ना, आप सैंपल बेसिस पे सेल ऑन रिटर्न वाले एग्रीमेंट्स उठाएं और उसमें टेन्योर देखें, टेन्योर कितना है, और ये मेक श्योर करें कि सेल्स
इनिशियली बुक ना हुई हो या तो टाइम लैप्स होने के बाद हुई हो और इस एस्टिमेट के हिसाब से हुई हो। तो आपने एग्रीमेंट में दोनों चीज़ें चेक करनी है कि टाइम पीरियड ड्यूरेशन कितना है, पहली चीज़, तब तक तो आपको सेल बुक करना अलाउड नहीं है, और सेल अगर वो बुक कर भी रहा है तो एंटिसिपेटेड रेट पे कर रहा होगा, इस पर भी तुमने काम कर लिया। पहले बताओ, दोनों काम समझ आते हैं? एक तो कॉन्ट्रैक्ट देखा और देखा टाइम लैप्स होने पे उसने बुक किया, और अगर उसने फिर भी सेल बुक की हुई है तो उसके पास ये रिटर्न की बेसिस होनी चाहिए जो अभी हमने देखी है। पहले बताओ, दोनों कहानियां समझ आती हैं विद ऑल द क्लैरिटी? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, दोनों कहानियां समझ आती हैं विद ऑल द क्लैरिटी? वेरी गुड। आए जी देखते हैं, मतलब बहुत अच्छा लिखा था आप लोगों ने, जैसे अंसा ने लिखा था, हलीमा ने लिखा था, शैजिल ने भी अच्छे लिखे ऊपर के प्रोसीजर। वेरी गुड। अब ये देखिएगा बच्चों, अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। रिव्यू द टर्म्स ऑफ सेल ऑन रिटर्न एग्रीमेंट। द ऑडिटर शुड रिव्यू a sample of sale or written agreements to verify the terms and condition of the sales. This includes examining the return period, any written conditions, and the specified contractual clauses that define when revenue can be recognized. भाई पहले बोल रहा कि एग्रीमेंट देख लो, आपको पता लग जाएगा किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। Test revenue recognition. Confirm that the revenue is recognized only when it is probable that the goods will not be returned एंड आफ्टर द रिटर्न पीरियड हैज एक्सपायर्ड। बोल रहा कि देखो ये मेक श्योर कर लो कि रेवेन्यू सिर्फ तब रिकॉर्ड हुआ हो, पहला, या तो इनके पास एक अच्छे एस्टिमेट होने चाहिए, जैसे हमने परसेंटेज वाली देखी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले, दूसरा, या तो उसने टाइम लैप्स होने के बाद किया। अच्छा, टाइम लैप्स होने के बाद अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर रेवेन्यू बुक किया तो क्या मुझे उसका एस्टिमेट चेक करना चाहिए, या तो वैसे ही एक्चुअल हो गया वो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वो एक्चुअल हो गया ना? उसके लिए मुझे टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। चलें आगे, फिर कह रहा है दिस में इन्वॉल्व टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन टू इंश्योर द रेवेन्यू वाज नॉट रिकग्नाइज्ड बिफोर द रिटर्न पीरियड हैज लैप्स, जो हमने भी लिखा था। आगे, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न पैटर्न्स। द ऑडिटर शुड असेस हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा टू इवैल्यूएट द लाइक्लीहुड ऑफ द रिटर्न्स। This includes reviewing past sales transaction to see if the return rate is consistent and estimating the impact of return on करंट पीरियड रेवेन्यू। याद है जो मैंने अभी ऊपर करके बताया था कि लास्ट ईयर की सेल्स को लास्ट ईयर के रिटर्न्स को ऊपर रख के सेल से डिवाइड करो, परसेंटेज रिटर्न मिल जाएगा। उसको करंट ईयर की सेल पे चिपका के देखो, देखो कि मैनेजमेंट ने सही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक की हुई है नहीं की हुई। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? कहानी समझ आती है? बेहतरीन, बेहतरीन। तो ये थे दो चीजें। अगेन ऐसा सवाल भी आज तक नहीं आया, हमने बोला चलो यार एक नया आविष्कार करते हैं। सर यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स कैसे हो सकते हैं, अभी देखते हैं, एक मिनट तुम्हारा सवाल। सर यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो रिसीवेबल एंड पेएबल तो रिकॉर्ड ही नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसा है। देखो यहाँ पे अगर तुम क्रेडिट नोट की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ जीडीएन जीआरएन से काम चलेगा। सही है, लेवल का सवाल था, शुक्रिया जी। सर प्रीवियस ईयर की परसेंटेजेस भी चेक कर सकते हैं ना सेल रिटर्न की? बिल्कुल वही किया हमने, वही किया है, वही किया है। हाँ जी बच्चों बताओ, मज़ा आया सवाल में? आया मज़ा सवाल में? 10 मिनट लगा के टाइप किया है। अच्छा अभी अभी चेक करता हूँ। ओके अनीप, तुम्हारा सवाल, इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट पीरियड ड्यूरिंग विच गुड्स कैन बी रिटर्न, सेलेक्ट सैंपल ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेस इट टू द रिलेटेड क्रेडिट एंट्रीज। ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। डिटरमाइन रीजनेबल ऑर्गेनाइजेशन यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर परसेंटेज ऑफ सेल्स रिटर्न कैन कंपेयर विद द लास्ट ईयर सेल्स रिटर्न परसेंटेज, ये सही लिखा है। चेक सब्सिक्वेंट सेल्स रिटर्न एंड इंश्योर रिलेटेड कैटेगरी एंट्रीज हैव बीन पार्क्ड एट द ईयर एंड। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है जानी। एक चीज इसमें ऐड कर देना, बस एक चीज इसमें ऐड कर देना जानी, जिसमें तुम ये लिखोगे कि we will make sure that the revenue for the contracts will only be recorded when the time lapse or there is a reasonable certainty that goods will not be returned। बस वो वाली बात क्लियर है? सही है नहीं?